मेरे साथ जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। 100 দিনের কাজের দুর্নীতি এবং রাজ্যের বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে ধর্মতলায় বিজেপির সভা ছিল। সেই সভাতে প্রধান বক্তা হিসেবে এসেছিলেন অমিত শাহ। তিনি রাজ্যের বিভিন্নভাবে বঞ্চিতদের নিয়ে প্রতিবাদ সভা, সেই প্রতিবাদ সভাতে বক্তব্য দিতে এসেছেন। কিন্তু তিনি কি করেছেন? তিনি প্রায় 22 মিনিট বক্তব্য দিয়েছেন। সেই 22 মিনিট বক্তব্যতে ছিল সম্পূর্ণভাবে সামনে যে লোকসভা নির্বাচন হবে 24-এ তার সভা করে গেছেন। তিনি একবারও মুখে তুলেন না 100 দিনের বঞ্চিতদের বিষয়, যেখানে 100 দিনের বঞ্চিতদের টাকায় কিন্তু বিজেপি আটকে রেখেছে, কেন্দ্রীয় সরকার আটকে রেখেছে। সেই টাকা নিয়ে দিল্লিতে অভিযান করেছেন। দিল্লির অভিযানের পরবর্তীতে কলকাতায় এসে ধর্ণা অভিযান হয়েছেন এবং তার পরবর্তীতেও টাকা কিন্তু বিজেপি দেয় না। সেই 100 দিনের টাকা এবং বিভিন্ন বঞ্চিত কর্মসূচি নিয়ে রাজ্যে যখন বিজেপির ধর্মতলা অভিযান হলো 29 তারিখে, 29শে নভেম্বর, সেই সভাতে এসে অমিত শাহ একটা কথাও 100 দিনের কর্মসূচি টাকা পাওনা এইসব নিয়ে কোনো কথা বললেন না। করে গেলেন ভোট প্রচার। আসলেন হেলিকপ্টারে করে, ব্রিগেড ময়দানে নামলেন, এয়ারপোর্ট থেকে এসে ব্রিগেড ময়দানে হেলিকপ্টার করে নামলেন, বক্তব্য দিলেন, জয় শ্রীরাম স্লোগান দিলেন। একবারও তিনি কিন্তু মা কালী, দুর্গা কোনো কিছুই উচ্চারণ করলেন না, শুধু জয় শ্রীরাম স্লোগান দিলেন। আর ওই মোদি কর্মসূচি 24-এ আসছে, এখান থেকে 35টা সিট পাবো, বিভিন্ন রকম কথা বললেন এবং এক পক্ষান্তরে বাঙালিদেরকে ঘুষপেটিয়া, তিনার যে বিখ্যাত কথা উইপুকা, সেরকমভাবে ঘুষপেটিয়া বাংলার সব কিছুই বলে গেলেন। বাংলার সবাই যেন ঘুষপেটিয়া। বাংলায় নিত্য রোজ রোজ হাজার হাজার মানুষ বাংলাদেশ থেকে আসছে, এক প্রকার বাঙালিদেরকে বাংলাদেশি বলে বিভিন্ন কথা বলে চলে গেলেন। তাহলে বিজেপির যে সভা হলো কি জন্য? শুধুমাত্রই কি ভোট প্রচারের সভা? বঞ্চিতদের নিয়ে একটাও কথা বললেন না। আপনারা সেই বক্তব্য অমিত শাহ শুনুন, কিভাবে তিনি ভোটের প্রচার করে গেছেন, জনগণের জন্য নয়, সামনে মোদির নির্বাচনী প্রচার করে গেছেন। বাংলার জনগণের কিছুই করে গেন না এবং তিনি রামের প্রচার করলেন, যেন হিন্দুদের একটাই দেবদেবী দেবতা, সব কিছুই রাম। তিনি না বললেন মা দুর্গার কথা, না বললেন কালীর কথা, আর কিছুই নয়, শুধুমাত্র রাম এবং ভোট প্রচার। আপনারা সেই বক্তব্য শুনুন। यहाँ पर आया था 2014 में और यहाँ से बंगाल की जनता को, तृणमूल को हटाने का कॉल देने का काम मैंने किया था भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के लिए। और मैं आज बंगाल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज बंगाल में 18 लोकसभा सीटें और 77 विधानसभा सीटें देकर बंगाल की जनता ने तय कर दिया है कि यहां पर अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भाई और बहनों, बंगाल की जनता ने 2,30,00,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को दिए, 77 सीटें दी। हमारे नेता शुभेंदु अधिकारी को अभी अभी दीदी ने दूसरी बार विधानसभा से बर्खास्त कर दिया है। मैं कहने आया हूं दीदी, कान खोलकर सुन लो, शुभेंदु जी को आप विधानसभा के बाहर तो निकाल सकती हो, परंतु बंगाल की जनता को चुप नहीं कर सकती। बंगाल की जनता कहती है दीदी आपका समय अब समाप्त हो चुका है। भाई और बहनों, सोनार बांग्ला और परिवर्तन के नारे के साथ, माँ माटी मानुष के नारे के साथ कम्युनिस्टों को हटाकर दीदी सत्ता पर आई। मैं पूछना चाहता हूं आपको, परिवर्तन हुआ है क्या? जरा जोर से बोलो, हुआ है क्या? घुसपैठ रुकी है क्या? तुष्टीकरण रुका है क्या? पॉलिटिकल वायलेंस बंद हुआ है क्या? भ्रष्टाचार रुका है क्या? मोदी जी लाखों करोड़ों रुपया बंगाल को भेजते हैं, तृणमूल के सिंडिकेट वाले वो रुपया को बंगाल के गरीबों तक पहुंचने नहीं देते। मैं आज आह्वान करने आया हूं, अगर 26 में यहां भाजपा सरकार बनानी है तो इसकी नींव 24 के लोकसभा के चुनाव में डालकर मोदी जी को बंगाल से प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। भाई और बहनों, 27 साल कम्युनिस्टों का शासन रहा,
ममता जी तीसरी टर्म के लिए जीती, लाल भाई और एक तृणमूल कांग्रेस मिलकर बंगाल को बर्बाद कर दी। चुनावी हिंसा पूरे देश में, चुनावी हिंसा अगर सबसे ज्यादा होती है तो बंगाल में होती है। घुसपैठ बंगाल सरकार, ममता बनर्जी रोक नहीं पाई। जो ममता बनर्जी कभी घुसपैठियों के लिए पार्लियामेंट चलने नहीं देती थी, वो ममता बनर्जी आज घुसपैठियों को खुलेआम वोटर कार्ड और आधार कार्ड बंट रहे हैं, वो चुप बैठी है। कट मनी से पूरी बंगाल की जनता परेशान, सिंडिकेट की उगाही से पूरी बंगाल की जनता परेशान। और जिस बंगाल में कभी सुबह सुबह रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था, वो बंगाल आज बम धमाकों से गूंज रहा है। मित्रों, बम धमाकों से गूंज रहा है। पूरे देश में गरीबी कम हो रही है, मगर बंगाल में गरीबी कम होने का नाम नहीं देती। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैं बाद में बात करूंगा, मगर मैं आपको बताने आया हूं भाइयों, मैं गुजरात से आता हूं। मेरे जीवन में किसी नेता के घर से इतनी सारी नोटों की गड्डियां किसी ने अपने जीवन में नहीं देखी होगी। मित्रों, जो बंगाल साहित्य, विज्ञान, कला, आजादी का आंदोलन, अध्यात्म, उद्योग और कृषि में पूरे देश का नेतृत्व करता था, वो बंगाल आज सबसे पिछड़ा बनाने का काम दीदी ने किया है। दीदी ने बंगाल को बर्बाद कर रख दिया है। मैं आज बंगाल की जनता को कहने आया हूं, बंगाल वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? दूर तक जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी सभी लोग इकट्ठा होकर राम मंदिर को रोक कर रखे थे। मोदी जी ने 2019 में इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी 2024 को मोदी जी इसका प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। मेरे साथ जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, मोदी जी ने देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया है। और यहां क्या हुआ? राजनीतिक हत्याएं, लगभग 212 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। मैं दीदी को कहकर जाता हूं, हम भाजपा वाले हैं, हमारा कार्यकर्ता हमारा भाई से बढ़कर होता है, भाई से बढ़कर होता है। दीदी, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की है, देश भर का और पूरे बंगाल का एक एक कार्यकर्ता इसका बदला लेने के लिए तैयार है। आप मेरी बात याद रखें।